क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइबर्स। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे, द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, अगर हम फाइबर्स की बात करेंगे, ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिफाइंड या क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट फाइबर्स बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल मसल सेल्स। अगर हम 2 तरह की मसल फाइबर्स की बात करेंगे, दैट इज द स्लो ट्विच फाइबर्स, जिनको बोलते हैं रेड एंड व्हाइट फाइबर्स भी, एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स भी। अगर हम फाइबर्स की बात करेंगे, देयर आर द डिफरेंट, पहले हम वी विल लुक आफ्टर द टू different types of fibers based on the biochemical and performance characteristics of an individual fiber। अगर हम स्लो ट्विच की बात करेंगे, जिनको STF भी बोलते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिनको स्लो ऑक्सीडाइज्ड फाइबर्स भी कहते हैं, और दे आर आल्सो कॉल्ड द टाइप फर्स्ट और रेड फाइबर्स भी जिसको बोलते हैं। टाइप फर्स्ट फाइबर्स, रेड फाइबर्स भी बोलते हैं इसको, और इसको स्लो ऑक्सीडाइज्ड फाइबर भी बोलते हैं। स्लो ऑक्सीडाइज्ड फाइबर क्यों बोलते हैं? जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, ह्यूमन मसल जो होते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं ह्यूमन्स के या एनिमल्स के होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम टू सम एक्सटेंट, बट रफली ऑल फाइबर्स आर एबल टू कैरी आउट एनी वर्क। जो भी मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर able to carry out their work under aerobic and anaerobic situations. But some muscles perform better in one position and some muscles perform better in other positions. In humans, some muscles perform better in anaerobic situations, or some muscles perform better in anaerobic situations. Means all the skeletal muscle fibers of human body are not exactly same. There is a difference, and the muscles are different from one another. एक दूसरे से different है। While there are 2 types of the skeletal muscle जो मैंने बताए हैं कि muscle fibers के traditionally, जिनको white और red muscle fiber कहा जाता है। अगर हम देखेंगे, it would be more relevant to identify the skill fibers according to their contraction time. According to their contraction time, जो मसल्स होते हैं इनका जो ये contraction time होता है, इस वजह से हम इनको identify करें। We can identify the muscles whether they are the fast or slow twitch fibers can be identified by their contractions, by their twist contraction time. For example, if a muscle fiber finishes his contraction quickly, will be referred as second type of muscles, या जिसको fast type muscles भी कहते हैं, second type muscles भी कहते हैं, उसको बोलते हैं कि वो मसल, if a muscle fiber finishes his contraction quickly, अगर वो अपना contraction quickly करता है, उसको क्या टाइप सेकंड फाइबर बोलते हैं, या फास्ट ट्विच फाइबर भी बोलते हैं। Number 2, if the muscle's contraction is very slow and the time contraction for the muscle is very slow, the rate at which the action जो होते हैं, action potentials are conducted along the, मतलब जो motor neurons होते हैं, that are innervated slow twitch fibers as compared to fast compares. That's why slow twitch fiber जो होते हैं उनमें slow contraction होती है, और जो fast type muscles होते हैं उसमें क्या होती है, fast type contractions होती है। slow type fibers में has very much importance। उसमें ये होता है कि slow type fibers वो muscles होते हैं जिसमें there is a high concentration of myoglobin, उसमें ज़्यादा होता है, large number of capillaries होते हैं, blood capillaries, and higher contents of mitochondrial enzymes भी उसमें ज़्यादा होते हैं। That provides the slow twitch fiber a high capacity of anaerobic metabolism। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में उसको ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है मायोग्लोबिन की। किसमें? स्लो ट्विच फाइबर। इसमें इंडिया हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन, लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ
Chondrial enzymes इसमें होते हैं that provides them the capacity to perform for longer durations, but at a slow pace in aerobic metabolism that gives the high resistance to the fatigue. The size of neurons जो होते हैं in this type of fiber में वो comparatively small होते हैं, but the number of fibers will be फ्रॉम 10 to 200 तक हो सकते हैं. सिंपली स्लो ट्वेज फाइबर वो फाइबर होते हैं जिनमें कंसंट्रेशन मायोग्लोबिन की ज्यादा होती है, कैपिलरी ज्यादा होती है, उसमें हाई कंटेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं. मीन गो स्लो ट्वेज फाइबर्स हैज द कैपेसिटी दीज थिंग्स जो इसमें वो हाई कैपिलरीज होती है, मायोग्लोबिन होता है या माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम ज्यादा, ये इसमें एक कैपेसिटी डेवलप करती है कि इट रेजिस्ट्स मच मोर. तो इन मसल्स में ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, जिसको क्या टाइप फर्स्ट मसल भी कहे जाते हैं, स्लो ट्वेज फाइबर्स भी कहते हैं सिंपली, जिसको रेड मसल फाइबर भी कहते हैं. नंबर 2 इज द फास्ट ट्विच मसल्स. फास्ट ट्विच मसल्स आर दोज मसल्स जिनको ये भी कहा जाता है फास्ट ग्लूकोलाइटिक या टायर 2 फाइबर्स या व्हाइट फाइबर्स भी इनको बोलते हैं. इनमें क्या होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं, देयर कंट्रैक्शन जो इससे पहले में मैंने बताया, देयर दिस मसल फाइबर फिनिश द कंट्रैक्शन वेरी क्विकली, क्योंकि इसमें क्या होता है रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें होते हैं. तो दिस एक्टिविटी परफॉर्मस इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म एज कंपेयर और लेस रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू. इनमें जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं इनमें लेस रेजिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू स्लो ट्विच फाइबर्स. हाउएवर जो ये फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं इनमें रिच होते हैं, दे आर रिच इन ग्लूकोजन, दे which provided them the large anaerobic capacity में, क्योंकि ग्लूकोजन ज्यादा वो होने की वजह से it gives them the much and enormous anaerobic capacity. the high number of myofibrils इनमें होते हैं फास्ट ट्विच मसल्स में, जो that the cells contain in mycins across bridges में जो होते हैं, that develops more force compared to slow twitch fiber. Means जो fast twitch fibers होते हैं इसमें क्या होता है, it has much more force and fast force as compared to slow twitch fibers. इसमें जो size of neurons होते हैं कंप्लीटली ज्यादा होते हैं और जो नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं. उसमें कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फाइबर्स जो होते हैं. अगर हम बात करेंगे इसके एथलीट्स की, हाई नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, द एथलीट्स हु हैव स्लो ट्विच फाइबर्स हैव एन एडवांटेज इन लॉन्ग एंड्योरेंस. उनमें क्या होती है लॉन्ग एंड्योरेंस, मगर द पर्सन्स हु हैव फास्ट ट्विच मसल्स हैव एन एडवांटेज इन शॉर्ट एंड्योरेंस. इनमें शॉर्ट एंड्योरेंस ज्यादा होती है, उनमें क्या लॉन्ग एंड्योरेंस ज्यादा होती है. को शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जो ये होते हैं स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं इनमें इनकी एडवांटेज होती है कि उनमें ज्यादा इंडोरेंस होती है, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. जो लेग मसल्स होते हैं स्प्रिंटर्स एज कम्पेयर टू, उनमें फास्ट ट्विच फाइबर जो होते हैं, बट द एलाइड एथलीट डिस्टेंस रनर्स क्या होते हैं उनमें स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं, साइकिलिस्ट या स्विमर्स में, बट इट गिव्स देम तो फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. एवरेज इंडिविजुअल में रफली क्या 25% स्लो ट्विच 25% फास्ट ट्विच होते हैं. उसमें होता है कि जो एलाइट एथलीट्स होते हैं फास्ट रिवील्ड दैट देयर कॉफ मसल जो होता है, उनका कॉफ मसल्स ऑफ द थाई जो होता है मच मोर स्मॉल ट्विच फाइबर्स, but the record holders in the marathon in short forms of resistance have much more fast twitch muscle fibers. Thank you.